Hello dear learners, welcome to another video of Target BFUHS with me Priyanka Randhir. So as you are here to study with us, so please take your notebook, water bottle, pens, whatever you need so that we can learn uninterruptedly. Right? So बिना किसी break दे, बिना किसी distraction दे, please take a corner किते side ते बैठ जाओ जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ disturb ना करे क्योंकि बहुत थोड़े दिन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ and it is very very important ਕਿ ਅਸੀਂ properly ਆ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ use ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ चलो so start ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ as I always say there is a beautiful saying that ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਸਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਸੋ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ 80% ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ 20% ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹੋ and you are really going to gain a lot from all these sessions जो पिछले sessions नहीं देख पाए no worries it is already uploaded on our channel ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ and WhatsApp number ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ queries ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ share ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ right okay so now without wasting any further time let's start with the video so part A will be Punjab history and culture right so ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ question ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ okay so which Sikh guru was preparing the Sikhs for the third battle so your options are displayed here so ਕੌਣ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੀ I'll give you a hint okay ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੀਏ ਰਾਈਟ ਸੋ what is going to be the correct answer yes very good it is Guru Gobind Singh ji it is Guru Gobind Singh ji right okay I really hope ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ okay ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ means old so the oldest city of Punjab is yes it is nothing but Jalandhar so Jalandhar ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ right okay moving forward ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਈਅਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਯੈਸ 1919 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 13th April ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲੇਆਮ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਗੇਟ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ है ना सो किन्ने किता सी it was General Dyer right so General Dyer सी जिन्हां ने जलियांवाला बाग कतलेआम किता सी right okay ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ so yes it is ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ it is ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ so 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਕੇ
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? whose verses of Baba Farid ji are included? In which book, in which scripture the verses of Baba Farid ji is included, right? In which book? So it is Guru Granth Sahib Ji. It is Guru Granth Sahib Ji, right? Okay. अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, बाबा अजीत सिंह किस अंदोलन नाल प्रसिद्ध होए? ठीक है, सो विच मूवमेंट इज बाबा अजीत सिंह फेमस फॉर? केड़ी मूवमेंट, केड़े अंदोलन दा करके बाबा अजीत सिंह प्रसिद्ध होए सी? ते ओ अंदोलन सी पगड़ी संभाल अंदोलन। ठीक है, पगड़ी संभाल अंदोलन आ खेतीबाड़ी नूं भी मुख रखते हुए किया गया सी ते ओदे विच उपराले किए गए सी कि खेतीबाड़ी दा वाधा होए। ठीक है, किसानां लई किसानां नूं मुख रखते हुए अंदोलन किया गया सी। ठीक है जी, चलो नैक्सट देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह दा नां ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਉਪਾਧੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। The British government had given the title ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ to ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? What new technical subject has the Punjab government announced to introduce into the schools, right? So ਕਿਹੜਾ ਉਹ subject ਹੈ? So that is nothing but artificial intelligence or कृत्रिम बुद्धि। artificial intelligence ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ AI यूज करके बड़े ट्रेंड्स वाली वीडियोस ते फोटोज जनरेट करते हैं। सो AI is the new normal, right? Everything is nowadays being taken care by the AI। ठीक है, सो AI ਨੂੰ artificial intelligence ਨੂੰ new syllabus ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ by ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ? ਬਾਕੀ ਬੋਰਡਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ। ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਸ਼ੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰ the free livestock being provided to widowed and divorced women in Punjab? ठीक है, so livestock दे रहे ने, है ना? So that is definitely option B. It is मुख्य मंत्री मुफ्त पशु प्रोग्राम, right? कई बारी obvious questions भी आ जाते ने, but सारे students ਨੂੰ लगता है कि इन्ना obvious नहीं आ सकता ते वो गलत कर लेंदे ने। So I have deliberately kept this question so that एक सानू आइडिया भी होए कि जे इहो जे क्वेश्चंस आंदे हैं ते किवें अटैम्प्ट करिए, राइट? सो पशु ऑलरेडी दिता होया सी क्वेश्चन च ते आंसर च भी जो भी ऑप्शन पशु नाल रिलेटेड है तुसी वो सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब विच हाल ही विच करंट अफेयर्स की गल हो रही है ना, सब रीसेंटली पंजाब विच किस विशेष स्कीम के तहत 11 लाख किसानां नूं सहायता दिती गई है? उस स्कीम का की नाम है जिहदे अंडर, जिहदे तहत 11 लाख किसानां नूं सहायता दिती गई है? सो वी हैव टू नेम दैट स्कीम, राइट? सो उस स्कीम का नाम की है? यस, इट इज PM किसान योजना,
PM किसान योजना, ठीक है। सो आ कुछ नाम तुहानू पता होने चाहिए ने, राइट। सो आ डिस्कस कर लिया असी द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स इन पंजाब, ठीक है। हुण असी गल करते हाँ द नर्सिंग पार्ट। सो नर्सिंग MCQs जिहड़े डिस्कस करांगे, मैं नाल नाल तुहानू दी एक्सप्लेनेशन दवांगी वाई इट इज करेक्ट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं असी अपने फर्स्ट क्वेश्चन वाल। साडा फर्स्ट क्वेश्चन है all of the following are long bones except word please जदों भी आए except not most likely less likely ਇਹੋ ਜਿਹੇ words ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ question 'ਚ, ठीक है। कई बारी सिर्फ लिखिया ਹੁੰਦਾ है not, ਤੁਸੀਂ नहीं ध्यान देंगे, ठीक है। कई बार लिखिया होंगे मोस्ट लाइकली का मतलब होंगे सब तो ज़्यादा चांसिस केड़े ने, या लिखिया होंगे लीस्ट लाइकली का मतलब होंगे सब तो घट उम्मीद केड़ी है, सब तो घट चांसिस किस आंसर दे करेक्ट होंगे ने, राइट। सो आ निक्की निक्की गल्लां तुसीं ध्यान रखनी है व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। Read it completely, underline the important words and only then attempt the question, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ इनफ टाइम ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ क्वेश्चन रीड कर लो, ठीक है। चलो गल करते हैं लॉन्ग बोन्स इन्हां विचों किहड़ी नहीं है। सो फर्स्ट वन इज स्कैप्यूला, यस स्कैप्यूला ही है जिहड़ी लॉन्ग बोन नहीं है। स्कैप्यूला किहड़ी बोन है? स्कैप्यूला इज अ फ्लैट बोन, स्कैप्यूला इज अ फ्लैट बोन। लॉन्ग का मतलब की है लंबी, ठीक है। फीमर हाँ जी लंबी होंगी है, लत्त च होंदी है ना साडी फीमर बोन, फीमर लंबी होंदी है, ह्यूमरस लंबी होंदी है, ते टीबिया भी लंबी होंदी है। सो इन्हां सारियां नूं याद करन दा एक सौखा जिहा तरीका मैं इत्थे तुहानूं दस देनी आ। जे असीं लॉन्ग बोन्स की गल कर रहे हैं, लॉन्ग बोन्स की, ठीक है जी। तुसीं सिंपली एक सिंपल निमोनिक याद करना है, फ्लैश टोन, FL मैं कुछ अल्फाबेट्स वड्डे लिख रही हूँ, कुछ स्मॉल लिख रही हूँ, ठीक है। सो फ्लैश जिहड़े स्मॉल है उन्होंने इंक्लूड नहीं करना, जस्ट एक सेंस बनाने लिए असीं वो यूज कर सकते हैं। सो फ्लैश टोज, ठीक है। सो F इज फॉर फीमर, ठीक है, ओके। L इज फॉर लिम्स, लिम्स च सारी आ जाती है, ह्यूमरस आ जाती है, ठीक है। देन वी हैव अल्ना, टीबिया, फिब्यूला, आ सारे आ जाते हैं, ठीक है। देन E छोटा लिखा है, इंक्लूड नहीं करना है। देन कम्स S, S इज स्मॉल बोन्स, है वो लॉन्ग लेकिन एज कंपेयर टू अदर्स इट इज स्मॉल बोन्स, राइट। स्मॉल बोन्स जिवें फैलेंजेस हो गए, आ उंगल वाली है ना, उंगलों वाली आ वाले आ जे फैलेंजेस, आ भी लॉन्ग बोन का एक पार्ट है बट कंपैरेटिवली बाकी लॉन्ग तो स्मॉल ने, ठीक है, ओके। देन कम्स yes, then comes H. H is for hand bones, hand bones की होंदी ने मेटाकार्पल, मेटाटार्सल्स, वो भी लॉन्ग बोन ही गिनिया जाती है बिकॉज द बेसिक स्ट्रक्चर इज एज सच, ठीक है। लॉन्ग बोन का मतलब होंदा है कि जिवें सपोज आ बोन है, ठीक है, इहदा शैफ्ट जिहड़ा है वो वाइड होएगा, राइट। सो शैफ्ट वाइड है, एंड्स जिहड़े लंबे ने, ते इट इज अ लॉन्ग बोन। सो आ तुसी याद कर लियो फ्लैश, ते T इज फॉर yes, T is for toe phalanges, phalanges मैं पहला भी दस्से जिहड़े हैंड्स दे ने ओ भी ते टोज दे भी phalanges, ठीक है। सो दिस इज अ निमोनिक फॉर लॉन्ग बोन, दिस इज अ निमोनिक फॉर लॉन्ग बोन। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द अदर बोन्स ऑल्सो। लॉन्ग बोन का तुसीं लिख लिया होएगा, नहीं लिखिया तो वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बट इट्स बेटर कि तुसीं नाल नाल लिखो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਓਕੇ ਦ ਨਿਮੋਨਿਕ ਫॉर शॉर्ट बोन्स, ठीक है, शॉर्ट बोन्स।
सो शॉर्ट बोन्स किहड़ियां हुंदियां ने छोटी छोटी बोन्स होंदियां ने ठीक है शॉर्ट का मतलब ही आया निमोनिक की याद रखना है तुसी शॉर्ट बोन्स आर कॉपर टी शॉर्ट बोन्स आर कॉपर टी 16 जो निमोनिक याद रखो तुहानू कदी नहीं भुल्लणगियां कि शॉर्ट बोन्स किहड़ियां हुंदियां हन सी इज फॉर कार्पल्स कार्पल्स ठीक है यू छोटा लिखे ना वो इसे इंक्लूड नहीं करांगे तो टी इज फॉर टार्सल्स टार्सल्स ठीक है जी एंकल च हुंदे ने टार्सल्स ते कार्पल्स रिस्ट च हुंदे ने ओके कलाइयां च रिस्ट ते एंकल राइट सो आ तुसी याद रख सकते हो फॉर यस फॉर शॉर्ट बोन्स ठीक है जी सो शॉर्ट बोन्स का निमोनिक आ हो गया हुण स्कैपुला साडा की सी फ्लैट बोन ते फिर फ्लैट बोन भी कर लिए नाल ही चलो कर लेने आ फ्लैट बोन्स फिर फ्लैट बोन्स नाराज ना हो जान कि साडा निमोनिक नहीं दसिया ठीक है फ्लैट मीन्स चपटी है ना बिल्कुल फ्लैट सरफेस होएगा ते फ्लैट बोन लिए तुसी याद रखना है निमोनिक फ्लैट पीपल say smart rules say smart rules ठीक है ਜਿਹੜੇ फ्लैट पीपल है उन्होंने स्मार्ट रूल्स बोलते नहीं दे से स्मार्ट रूल्स निमोनिक की है फ्लैट तो पता ही है ना PSSR ठीक है P पीपल से स्मार्ट रूल्स राइट P तो आंदा है साडा पैराइटल बोन फ्लैट बोन है ना पैराइटल बोन स्कल बोन है देन स्कैपुला असी पहले ही डिस्कस कर लिया स्कैपुला है दूजा एस है स्टर्नम स्टर्नम भी की होंदी है ब्रेस्ट बोन बिल्कुल फ्लैट बोन होंदी है ठीक है एंड लास्ट इज आर विच इज रिब्स सो आप कुछ निमोनिक याद करोगे तो बोन्स वाले क्वेश्चन तुहाडे कदी गलत नहीं होंगे ठीक है जी चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके इत्थे पूछा गया है आ पीडियाट्रिक दा क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ नियोनेट्स सी क्वांटिटेटिव वर्ड जदों भी आएगा इट इज रिलेटेड टू नंबर्स कि कोई ना कोई असी नंबर देने आ ठीक है ओके सो जदों असी नंबर देने आ तां नंबर देना किन्नू नंबर देने आ नियोनेट दी कंडीशन नू कदों बर्थ दे वेले ओदी जो भी कंडीशन है उन्नू वेख के नंबर्स च कन्वर्ट करना दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ते उन्होंने पूछा है क्वेश्चन च कि इनू असी की कहने आ राइट सो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस ओके देखो बाकी ऑप्शंस आर रिकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सो आई पहला ही तुसी रूल आउट कर दो कि स्कोर एको ही आ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स नू दूजे वर्ड्स च असी कहने आ स्कोर सो द राइट आंसर इज अपगार स्कोर ठीक है जी हुण की हुंदी है कदों कदों करते हैं वो मैं तुहानू थोड़ी जी डिटेल दी दसांगी बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट ओके सो अपगार स्कोर असी करने हाँ 1 मिनट ते आफ्टर बर्थ ओके एट बर्थ करते हैं इमीजिएटली 1 मिनट ते 5 मिनट्स ते असी आ स्कोर नोट करने हुंदे ने आ सानू की दसदा है अपगार स्कोर सानू दसदा है कि बच्चे नू रिसैसिटेशन की लोड़ है कि नहीं है सीधा मैं मोटा मोटा दस रही हाँ अदरवाइज इट इज़ अ डिटेल टॉपिक बट इन्ना याद कर लो कि अपगार स्कोर नाल सानू बच्चे की कंडीशन पता लग जाती है रेस्पिरेटरी स्टेटस कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस है ना बच्चा किवें मस्कुलर द न्यूरोमस्कुलर स्टेटस सारा पता लगता है तो इस बच्चे का सर्वाइवल ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੈਸਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ अपगार स्कोर ही ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਸੋ अपगार स्कोर ਯੂਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯੈਸ ਓਕੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ अपगार स्कोर ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਮੋਨਿਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ A
जे असी ए करिए, ए इज फॉर अपीयरेंस, पी इज फॉर पल्स, जी इज फॉर ग्रीमेस, A is activity and R is respiration. So अपगार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ 2 1 ਜਾਂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੇਬਰ ਰੂਮ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨॉर्मल है, मीन्स पिंक है। ठीक है, ਹੁਣ ਸਕਿਨ ਕਲਰ 'ਚ ਆਈਏ ਨॉर्मल ਓਵਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬੋਡੀ। ਓਵਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬੋਡੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਪਿੰਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਕੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 2 ਸਕੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਨੀਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਲਾ, ਪੇਲ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਫਿੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾ, ਚਿੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾइनोटिक है, नीला पिया होया है तो 0 स्कोर आएगा। जे लगता है कि बॉडी तो ठीक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ हथ पैर नीले पे हुए ने तो असीं उन्होंने 1 स्कोर देवांगे। ठीक है, इवें ही सारे क्राइटेरियाज तुसीं चैक करनी है। पल्स की गल करिए, हार्ट रेट 100 तो ज़्यादा है 2 नंबर, बहुत वधिया गल है। 100 तो घट है 1 नंबर, तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है तो 0 नंबर। दैन ग्रीमेस, ग्रीमेस मीनस कि असीं उन्होंने ना एक रिफ्लैक्स दे के वेखांगे, जिवें नक 'ਚ ਉਹਦੇ थोड़ी स्टिमुलेशन देवांगे या पैर ते फ्लिक करांगे। जे तां बच्चा स्नीज करता है, कफ करता है ना, या विगरस कराए है तो 2 नंबर दे दो। जे ग्रीमेस है मीनस ज़्यादा नहीं रिएक्ट कर रहा, थोड़ा बहुत रिएक्शन है, 1 नंबर। तो नो रिस्पॉन्स, तुसी इरीटेट भी कर रहे हो, स्टिमुलाई भी दे रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देन इट इज़ 0। ठीक है, ओके। फिर गल करते हैं मसल टोन की, क्योंकि मैं क्या ना न्यूरोमस्कुलर सिस्टम भी इत्थे सानू असैस करने का मौका मिलता है। हुण मसल टोन एक्टिव है, बेबी हथ पैर मारदा पिया, अपना रजिस्ट कर रहा है ना, तुसीं फड़ के सीधा कर रहे हो, फिर वापस फ्लैक्सड पोजीशन च इवें सीधा कर दो, फिर फ्लैक्स पोजीशन ते लैके आ रहे हैं, देन यू कैन गिव अ स्कोर ऑफ 2। ठीक है, स्कोर ऑफ 2। जे आर्म्स एंड लैग्स फ्लैक्सड ने तो वह कोई मूवमेंट होर नहीं कर रहे हैं, मस्कुलर मूवमेंट नहीं है ना, तो इट इज़ 1। जे मस्कुलर टोन एबसेंट है, मसल टोन नहीं है, तुसीं बच्चे का हाथ उपर कर दो थले डिग जाता है, बच्चा नहीं टोन मेनटेन नहीं कर रहा, दैट मीनस 0 स्कोर। दैन कम्स रेस्पिरेशन, गुड कराए होंदे ही बच्चा रो पिया, वेरी गुड, कुछ करने की लोड़ ही नहीं है। गैसपिंग इरेगुलर है, इवें बच्चा साह ले रहा है, ठीक है, आवाज़ भी आ रही है तुहानू, चेस्ट बिल्कुल अंदर तक जा रही है। ठीक है, देन इट इज़ यू विल गिव 1 नंबर। एंड कोई चेस्ट मूवमेंट नहीं, राइज फॉल तुहानू विख ही नहीं रहा है, देन इट इज़ अ 0। राइट। सो हुण असीं की करते हैं, जिवें इनू 2 देता, लेट्स सपोज पहले वाले अपीयरेंस नू 2 देता, इनू 1 देता, इनू 1 देता, इनू 1 एंड इनू 2। ठीक है, सो टोटल दसो कितना हुआ है, 2 2 4 5 6 7। सो साडे कोल इस बच्चे का स्कोर आ गया 7। हुण असीं किवें पता करांगे कि 7 स्कोर वधिया है कि नहीं है, तो उहदे लई प्लीज़ नोट डाउन कि जे 7 to 10 दी स्कोर है, सानू कुछ करन दी लोड़ नहीं है, इट इज़ नॉर्मल एंड हेल्दी, बच्चा हेल्दी है। राइट। जे स्कोर 4 तो 6 दे विच आंदी है, जे टोटल करके 4 तो 6 दे विच दी स्कोर आंदी है, तो असीं कहांगे कि मॉडरेटली डिप्रेस्ड है बच्चा। ठीक है, डिप्रेस्ड एंड मे नीड रिससिटेशन। राइट, रिससिटेशन की लोड़ पै सकती है, बैग मास्क की लोड़ पहला पेगी, उस तो बाद बाकी मेजर्स करने की लोड़ पै सकती है। एंड इफ इट इज फ्रॉम 0 to 3, then it is severe distress. Right. एंड इमीजिएट इंट्यूबेट करने की लोड़ पै सकती है। इंट्यूबेशन मीनस एंडोट्रेकियल ट्यूब पा के वेंटीलेटर सैट करना पै सकता है, तो बच्चे नू वेंटीलेट करना पै सकता है। सो सी अपगार स्कोर नाल तुसी कितना कुछ पता कर सकते हो। राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ टॉपिक करके जरूर जाना है।
मैं ਉਹੀ टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ ਜਿਹੜੇ बहुत इंपॉर्टेंट ਨੇ फाइन चलो नेक्स्ट गल करते हैं यस दिस इज फ्रॉम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हले तक मैं काफ़ी स्टूडेंट्स देखती हाँ दे आर सो कन्फ्यूज्ड अबाउट इट बट आई एम गोइंग टू टेल यू द लेटेस्ट गाइडलाइंस ठीक है चलो हॉस्पिटल ड्रेसिंग्स आर बेस्ट डिस्पोज्ड बाय हुन फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल ड्रेसिंग की है इन्फेक्टेड है यस और नो यस अ बिग यस इट इज इन्फेक्टेड है ना पहला तो दसो केड़े बिन च पावांगे जल्दी नाल दसो केड़े बिन च पावांगे इन्फेक्टेड ड्रेसिंग आ ठीक है मतलब किसी ਨੂੰ भी इन्फेक्शन कर सकती आ ब्लड स्टेन्ड आ पस स्टेन्ड आ केड़े बिन च असीं पावांगे वेरी गुड एक्सीलेंट इट विल गो इन येलो बिन इट विल गो इन येलो बिन ठीक है आ गल क्लीयर होगी नाउ हुण असीं ਜਿਹੜੀ हॉस्पिटल ड्रेसिंग है ਉਹਦਾ फर्दर ट्रीटमेंट किवें करांगे ਤੇ प्लीज़ रिमेंबर मोस्टली है ना मोस्टली ਜਿਹੜਾ येलो वाला ਹੁੰਦਾ ना येलो ड्रेसिंग येलो डब्बा ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है येलो डब्बा इनसिनरेट ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦਾ समान डब्बा नहीं ठीक है डब्बे ਦਾ समान इनसिनरेशन मीनस हाई टैंपरेचर च ਉਹਨੂੰ बर्न ਕਰਦੇ ਆ ताकि वो जड़ा इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियाज पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जान किसी होर इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो राइट आ गल क्लीयर है ओके सो साडा की आएगा बर्निंग या इंसिनरेशन ऑफ द वेस्ट ठीक है ओके नाउ एक इत्थे प्लीज मैं नोट डाउन कर लो येलो इन्फेक्टेड है ना yes yellow is infected waste right so yellow waste ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਐਨਾਟੋਮਿਕਲ ਪਾਰਟਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸਟੇਨਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ then ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੂਟਮ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਸਟੇਨਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਯੈਲੋ 'ਚ ਹੁਣ ਯੈਲੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਯੈਲੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਸਿਨरेशन बर्न कर देनी है ठीक है सो क्यों बर्न करते हैं क्योंकि जेड़ा येलो डस्टबिन है ਉਹਦੇ कंटेंट इन्फेक्शियस ने एक एक्सेप्शन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जे ग्लव्स ने है ना ग्लव्स च जे ब्लड लग जाएगा तो कित्थे सुट्टांगे यस असी रेड च सुट्टांगे ठीक है सो येलो च नहीं जाएगा भावें उहदे ते ब्लड लग गया है ग्लव्स विद ब्लड स्टेन्स वैसे तो ग्लव्स प्लास्टिक है सारा प्लास्टिक वेस्ट नॉन इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट रेड च ही जाता है ना बट जे ब्लड भी लग गया है फिर भी असी रेड च ही सुटना है एक होर कन्फ्यूजन जिहड़ी स्टूडेंट्स च हुंदी है ग्लूकोज स्ट्रिप्स यूज्ड ग्लूकोज स्ट्रिप्स कित्थे सुटांगे अगैन इट विल गो इन रेड ओनली ठीक है मैं रेड पेन नाल भी लिख रही हूँ ताकि याद रहे तुहानू सो रेड क्यों रेड च क्योंकि जो फाइनल ट्रीटमेंट है ना जिवें येलो वाले नू सारे नू जलाता जे असी ग्लव्स या ग्लूकोज स्ट्रिप जिहड़े प्लास्टिक दे बने ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ then the final treatment is not going to happen properly है ना so ਅਸੀਂ येलो 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਰੈੱਡ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਨੇ ਆ येलो 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ एनवायरमेंटल हैजार्ड भी है ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं बर्न हो पाएंगियां ਤੇ पोल्यूशन भी ज़्यादा ਵਧੇਗਾ सो ਅਸੀਂ नहीं करते हैं ਹੁਣ रेड च if I talk about red सारा plastic waste red च ਜਾਂਦਾ है and the final treatment ਹੁਣ red ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ autoclaving ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ red ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਿਨरेशन नहीं करनी ठीक है इनसिनरेशन जो तुसी कोई कह रहे हैं तो नहीं करनी है then
ਹਾਈਡਰੋਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਹਾਈਡਰੋਕਲੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਲਸੋ देयर कैन बी ਸ਼੍ਰੈਡਿੰਗ ਸ਼੍ਰੈਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੈਡਿੰਗ who will tell me what is shredding shredding ਹੁੰਦਾ ਹੈ छोटे छोटे टुकड़े कर देने जे नहीं कुछ हो रहा प्लास्टिक है ना ये हो जाए कि कुछ नहीं कर पा रहे then छोटे छोटे टुकड़े कर दो ठीक है shredding ठीक है इस तो इलावा होर की कर सकते हैं ਅਸੀਂ shredding तो इलावा होर की कर सकते हैं एक छोटे छोटे टुकड़े करते ठीक है इस तो इलावा की कर सकते हैं जेड़ा आ मटीरियल बचता है क्योंकि प्लास्टिक पूरी तरह नहीं खत्म होता है सो जो भी मटीरियल बचता है ओदी असी रीसाइकलिंग कर सकते हैं की कर सकते हैं रीसाइकलिंग क्लियर है सो येलो च इन्फेक्टेड वेस्ट एंड ब्लड स्टेन्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्लड स्टेन्ड ग्लव्स एंड ब्लड स्टेन्ड ग्लूकोज स्ट्रिप आ गल दा ध्यान देना है राइट एक होर क्वेश्चन सी इहदे नाल रिलेटेड कि असी ब्लड बैग एम्प्टी ब्लड बैग असी कित्थे डिस्कार्ड करांगे अगैन येलो पर सेम येलो नहीं जिहदे ते तुसी इन्फेक्शियस वेस्ट डिस्कार्ड कर रहे हो एक वखरा येलो बैग आंदा है एक वखरा तुसी लाओगे डब्बा डस्टबिन वखरा लाओगे येलो कलर दा एम्प्टी ब्लड बैंक अलग एक डस्टबिन च जाणगे ठीक है सेम येलो डब्बा यूज नहीं करना कहन दा भाव है कि 2 डब्बे रखो येलो कलर दे एक एम्प्टी ब्लड बैग ली क्योंकि ओदा ट्रीटमेंट कोई भी डिपार्टमेंट आप नहीं करता है एम्प्टी ब्लड बैग जाते ने ब्लड बैंक सो तुहाडा काम है कि ब्लड बैंक जाके तुसीं डिपॉजिट करा दो अगे वो ट्रीटमेंट करके फिर ब्लड बैग्स नू ऑटोक्लेव या जो भी करना है इन्हां विचों रेड सॉरी नॉट ऑटोक्लेव दे डू सर्टन लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट उस तो बाद वो फर्दर उन्होंने ट्रीट करते हैं ठीक है सो बेसिकली येलो च जाएगा लेकिन सेम येलो बिन च नहीं जाना जिहदे च तुसी इन्फेक्शियस या तुसी एनाटॉमिकल वेस्ट सुट रहे हो राइट एक होर क्वेश्चन इत्थे आंदा है एक्सपायर्ड ड्रग्स कित्थे सुटोगे एक्सपायर्ड ड्रग्स तुसी एक येलो पॉलीथिन डब्बे दी लोड़ नहीं है येलो कलर कोडेड बैग्स आते हैं ना बायोमैडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए येलो बैग च पा के उन्होंने बन के एक्सपायर्ड मेडिकेशंस उपर साइटोटॉक्सिक दा लेबल लगा के तुसी बायोमैडिकल वेस्ट जिहड़ा भी तुहाडा एरिया है उत्थे भेज देना राइट सो आ कुछ चीज़ां जिहड़ी एक्सैप्शनस ने ते तुहानूं पता होनी चाहिए ने ओके जे हुण गल करिए असी वाइट दी ठीक है वाइट हाँ जी कौन दसेगा वाइट च की सुटते हैं असी वाइट यस वेरी गुड वाइट इज फॉर शार्प्स है ना जिमें नीडल्स हो गई कोई भी तिखी चीज़ राइट इट शुड बी पंचर प्रूफ कंटेनर है ना जेड़ा कि बाहर सुई बाहर ना चल जाए तो किसी को इंजरी ना पहुंचा दे सो वाइट इज फॉर शार्प्स नीडल सिरिंजेस स्कैल्पल ब्लेड वगैरह जोड़े होंगे ने सारे ये आएंगे इन्हों का फाइनल ट्रीटमेंट होंदा है ऑटोक्लेविंग ठीक है ऑटोक्लेविंग या असी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ठीक है आ दोवें चीज़ां होंदियां हैं फॉर वाइट नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कैटेगरी विच इज द ब्लू कैटेगरी ओके इत्थे लिखती हैं ब्लू कैटेगरी विच इज ब्लू की है असी वैसे कार्डबोर्ड गत्ता रख देने ऊपर ब्लू टेपिंग कर देंगे गवर्नमेंट सैक्टर च बिकॉज रिसोर्सिज आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल बट एज पर गाइडलाइंस एक डब्बा होना चाहिए ब्लू राइट गत्ते का हुण पहला यूज कहते सी कार्डबोर्ड कर लो हुण रीसेंट जिहड़ा वो आया है न्यूज़ आई है उहदे अकॉर्डिंग रीसेंट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग असी डब्बा ही लाना होंदा है ठीक है सो ब्लू च की आंदे ने ऑल द ब्रोकन ग्लासेस वाइल्स एम्प्यूल्स ठीक है वाइल्स एम्प्यूल्स आ सारे आंदे ने ब्लू कैटेगरी दे विच ठीक है हुण ब्लू कैटेगरी दा फाइनल ट्रीटमेंट की होंदा है
फस्ट ऑफ ऑल डिसइनफेक्शन करते हैं, ठीक है। ब्लू कैटेगरी च जो भी मटीरियल है उसका डिसइनफेक्शन करते हैं। किवें कर सकते हैं? ऑटोक्लेविंग करके। होर की कर सकते हैं? माइक्रोवेविंग करते हैं। होर की कर सकते हैं? हाइड्रोक्लेविंग, ठीक है। हाइड्रो क्लेविंग जिहड़ा रेड दा करदे सी ऑलमोस्ट इहदा भी सेम ही है, राइट। एंड अगैन ब्लू वाले भी वी कैन रीसाइकल, क्योंकि कच भी पूरी तरह खत्म नहीं होंदा है। सो ब्लू और रेड दे जिहड़ी एंड ट्रीटमेंट्स है वो थोड़ी थोड़ी सेम ने, राइट। ट्रीट करके एंड च की करते हैं ऑलमोस्ट सेम है, यस। वाइट शार्प्स वाले दा एक होर गल याद कर लो कि असी डंप कर देने हैं जो भी बचता है ना मटीरियल कच का, जे रीसाइकल नहीं हो सकता तो उन्होंने एक की कहने डिस्पोजल पिट बना के, है ना, एक गड्ढा बना के उत्थे सुट के उपर एक मिट्टी की लेयर पा देनी है ताकि किसी को वज ना जान, ठीक है। एंड काफ़ी डीप होना चाहिए है ता जो कि कोई एनिमल या कोई भी लंघ रहा है उत्थों इन्ना नहीं उपर होना चाहिए कि वो इंजर्ड हो जाए, राइट। सो आ सारी चीज़ां तुहानूं बायोमैडिकल वेस्ट के बारे पता होनी चाहिए, क्लीयर है। चलो हुण नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा तुसीं बहुत बार वेख लिया होएगा, बार बार मेरी स्लाइड्स अगे जा रही हैं लिखण दे टाइम ते। ओके, द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। सो इहदे लई मैं तुहानूं एक निक्की जी कहानी सुनानी आ, ठीक है जी। ओके, सो एक बारी की होया जिहड़े ओवरीज से उन्होंने एक पार्टी रखी, आ ओवरीज ने, ठीक है, आ ओवरीज ने इन्होंने एक पार्टी रखी, ठीक है जी। ओवरीज ने पार्टी रखी ते ओवरीज दे अंदर होंदे ने ग्राफियन फॉलिकल। की होंदे ने ग्राफियन फॉलिकल्स? फॉलिकल्स ही ने बस, तुसी फॉलिकल्स नाम भी याद रखोगे चलेगा। फॉलिकल्स डांस करते रहे। हुण हुंदा की है जदों फॉलिकल्स डांस करते ने, है ना, उन्हां दे अंदर एक्चुअली डिवेलप हो रहा होंदा है एग। आ फॉलिकल है, आ रप्चर कर जाता है, विचों एग बाहर आ जाता है, दिस इज एग, ठीक है। सो इन्ना डांस किया कि एग बाहर आ गया ते उस तो बाद जिहड़ा आ सारी जिहड़ा अंदर प्रोसैस हो रहा सी वो चेंज हो जाता है एक पार्ट विच जिन्हों असी कहने हाँ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। सो ओवरीज ने पार्टी रखी, डांस होया, एग नूं धक्का देता बाहर, जिहड़ा बचिया पार्ट सी वो सी कॉर्पस ल्यूटियम। वो कहता मैं नहीं जाना पार्टी च, मैं पिछे ही रह के मैं की करांगा, मैं ओदे हुण एक होर गल है जिवें आ है कॉर्पस ल्यूटियम, आ साडा है कॉर्पस ल्यूटियम, इहदे सिर ते एक क्राउन है, आ क्राउन की है साडा? यस, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन। सो कॉर्पस ल्यूटियम कहता है मैं नहीं जाना पार्टी च, मैं पिछे बह के प्रोजेस्ट्रॉन दे नाल मिल के जिहड़ा सोफे लगे ने उन्होंने गर्म रखांगा, उन्होंने मोटा रखांगा। सो सोफे इत्थे किहड़े ने? जिहड़ी यूट्रस दी लाइनिंग होंदी है, इनर लाइनिंग, ठीक है। सो बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन का काम की हुंदा है, आ सोफे जड़े ने, ठीक है, इन्हों थिक करना, होर गर्म करना, होर वधिया मोटा करना, ताकि जो भी जे प्रेगनेंसी हो जाती है तो जाइगोट इत्थे आके एम्बेड हो जाए, टिक जाए, फिक्स हो जाए, इंप्लांट हो जाए तो उन्होंने रहन की थां मिले, ठीक है। सो कॉर्पस ल्यूटियम कहता है कि मैं प्रोजेस्ट्रॉन के नाल बहन की थां का अरेंज करदा, तुसी जाओ तो पार्टी करो, गैसट लई बहन की थां मैं कोजी जिहा गद्दा मैं बना के रखांगा, ठीक है। सो बेसिकली कौन करता है सारा कुछ? कॉर्पस ल्यूटियम। सो चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इज कॉर्पस ल्यूटियम एंड जे प्रेगनेंसी हो जाए तो कुछ हफ्ते कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू करता है, बाद चों प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेंदा है तो प्लेसेंटा प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। गल क्लीयर होगी। सो आ कहानी याद रखनी है कि कॉर्पस ल्यूटियम इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है।
Okay, moving on to the next one. Digoxin is not given when heart rate is. Digoxin is not given when heart rate is. If the heart rate is below 60 beats per minute. ਹੁਣ digoxin ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? Digoxin ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ AV ਨੋਡ ਤੇ SA ਨੋਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। AV ਨੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਲੋਅਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਘਟਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਜੋਕਸਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹਾਰਟ ਰੇਟ 60 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੰਦ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਇਜੋਕਸਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ 60 ਬੀਟਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਡਾਇਜੋਕਸਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਜੋਕਸਿਨ AV ਨੋਡ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੋਕ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡੀਕਾਰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 60 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਹਾਰਟ ਬਲੌਕ and patient may even die. This is a life threatening condition. So digoxin ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਸਿਸ ਬਿਫੋਰ ਗਿਵਿੰਗ digoxin, ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ and hold digoxin if the heart rate is below 60, it goes below 60। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਵੂਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਵੇਰੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ। ਓਵਰੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਟਵਿਨ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਓਵਰੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਟਵਿਨਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਰਾਈਟ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਟੋ ਮੀਨਸ ਓਨ ਬੋਡੀ। ਆਟੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਓਨ ਬੋਡੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਸਕਿਨ ਥਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, that is an example of autograft। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਲੋਗ੍ਰਾਫਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਗ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਲੋਗ੍ਰਾਫਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਗ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ from another human and same species। same होगी ना species, human ने human तो ही लेता है, same species हो गई। उस तो बाद आंदा है xenograft। xenograft ਨੂੰ ਅਸੀਂ heterograft ਵੀ, ਜਿਵੇਂ homo ਸੀ ਹੁਣ opposite ਹੋ ਗਿਆ heterograft। heterograft ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮੋ ਦਾ ਸੀ ਸੇਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਪਿਗ ਦਾ ਹਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਗਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟੈਂਪਰਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈਸੋਗ੍ਰਾਫਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗ੍ਰਾਫਟ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗ੍ਰਾਫਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗ੍ਰਾਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨ ਮੇਡ। ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ? ਮੈਨ ਮੇਡ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਗ੍ਰਾਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨ ਮੇਡ। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੈਨ ਮੇਡ ਗ੍ਰਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਕਦੀ
कि आ मैन मेड ग्राफ्ट है? यस, कई वैस्कुलर ग्राफ्ट आंदे ने ਜਿਹੜੇ मैन मेड ने, ठीक है। वैस्कुलर ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡੋਨਰ ਦੀ ਲੋੜ नहीं होती, राइट। ਇਹਦਾ एक एग्जाम्पल लिख लो सारे, डेक्रॉन, डेक्रॉन, ठीक है जी, ओके, डेक्रॉन। एंड एक होर होंदा है PTFE, PTFE एग्जाम्पल कई बार पूछ सकते हैं, ठीक है। सो तुहानू पता होना चाहिए कि की है, ओके। नाउ हुण जे आइसोग्राफ्ट है ना, वो की हुंदा है कि जेनेटिकली सेम है, जे जेनेटिकली सेम बंदे तो लै रहे हो। हुण ऊपर क्वेश्चन च सी ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस मीनस इन्हां दी जीन्स सेम है, यस और नो? यस, जीन्स सेम है ना इन्हां दी, आइसो मीनस सेम ते जीन्स मीनस जेनेटिक, सो साडा आंसर होएगा आइसोग्राफ्ट, सिंपल, ठीक है। सो ग्राफ्ट के सारे क्वेश्चन मैं तुहानू दसते ने, इन्हां ही विचों आउणगे, इस तो बाद नहीं है ग्राफ्ट का टॉपिक। चलो नेक्स्ट, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मैटोजेनेसिस, जिहड़े स्पर्म्स बनते ने किन्ना दिनां तक वाइबल रहंदे ने? द आंसर इज 74 days, ठीक है। वाइबल मीनस लिविंग, सिंपल याद कर लो, जिंदा किन्ने दिन तक रहंदे ने? द आंसर इज 74 days, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, when planning care for a person with burn on the face, neck, the highest priority nursing diagnosis is, हुन फेस भी बर्न है, नेक भी बर्न है, आ पोर्शन ऊपर वाला बर्न है। फेस च आंदा है नोज ते माउथ, जिहड़ा रेस्पिरेशन च हेल्प करता है। आ वाले पोर्शन च ट्रीकिया आंदा है, जिहड़ा रेस्पिरेशन च हेल्प करता है। ते लाइफ थ्रेटनिंग इज ऑलवेज, किनू असी कवांगे कि लाइफ थ्रेटनिंग आ एयरवे, और ब्रीदिंग जे कंपनसेट नहीं हो पा रही है, जे रुकावट आ रही है एयरवे या ब्रीदिंग दे विच, ठीक है। चलो देखते हैं कि ऑप्शंस विच केड़ा है। यस ऑफ कोर्स, इनइफेक्टिव एयरवे क्लीयरेंस, एयर साह ही नहीं लै पा रहा पेशेंट, ते प्रायोरिटी तो उही होएगी ना। सो एयरवे ब्रीदिंग इज ऑलवेज द प्रायोरिटी एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स। बर्न च नो डाउट फ्लूइड्स प्रायोरिटी होंदे ने, पर सिर्फ फेस और नेक दे बर्न्स च इन्ना फ्लूइड लॉस नहीं होंदा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ बर्न। सो परसेंटेज ऑफ बर्न या एरिया इन्वॉल्व ज़्यादा है तो फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा जोड़ा है प्रॉब्लमैटिक होएगा। बट इन्होंने क्या है कि फेस ते नेक ते ने, देन इट इज इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, राइट, ओके। बाकी प्रायोरिटी नहीं है। Then, during assessment of a child's visual acuity, finding indicates myopia. So, myopia. की है myopia? आई डिसऑर्डर है, ठीक है जी। विजुअल एक्विटी जिहड़ी है इहदे च खराब हो जाती है। मायोपिया नू होर असी की कहने आ? एनी आइडिया की कहने आ असी मायोपिया नू? वेरी गुड, मायोपिया नू असी कहने आ शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है जी। शॉर्ट साइटेडनेस है, दूर दा जिहड़ा है वो धुंधला वेखदा है, शॉर्ट साइटेडनेस है, या असी इन्हां नू कहने आ नियर साइटेडनेस, ठीक है। मायोपिया विच की होएगा? लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ां जिहड़ियां ब्लर विखणगियां, धुंधली विखणगियां, ठीक है, ब्लरिंग हो जाएगी। ते बच्चे विच तुसी की देखोगे? लेट्स सी दी ऑप्शंस। यस, ऑप्शन डी, द चाइल्ड होल्ड्स द बुक क्लोज टू द फेस। क्यों? क्योंकि जदों दूर होंदी है उन्होंने ब्लर लगती है, जदों नेड़े होएगी तो उन्होंने क्लीयर विखेगा। सो मायोपिया च चाइल्ड बिल्कुल पास रख के बुक नू फिर पढ़न की कोशिश करेगा, एंड यू विल मेक इट आउट ईजीली दैट इट इज मायोपिया, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस ते लॉन्ग डिस्टेंस दा ऑपोजिट जिहड़ा है वो की लगदा है?
ਬਲਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਾਇਓਪੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮੋਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ। माइनस फॉर डिस्टेंस, माइनस फॉर डिस्टेंस मतलब हर कोई थोड़ा लागे करके वेखण की कोशिश करेगा, डिस्टेंस माइनस कर दो, ठीक है। इवें तुसी कदी भुलोगे नहीं कि डिस्टेंट विजन जिहड़ी है वो इंपेयर्ड आ, ठीक है। सो लेंस भी इहदे नाल आ भी पता लगता है कि साडे माइनस दे लेंस चलणगे, माइनस लेंस लगाओगे तो डिस्टेंट विजन ठीक कर पाओगे, राइम हो गया। माइनस लेंस लगाओ, डिस्टेंस विजन ठीक कराओ। सो आ एक एडवरटाइजमेंट टाइप बन गया, बट इहदे नाल तुसी याद रख सकते हो अपने पूरे सिनेरियो में, ठीक है। ओके, coming on to our next question, which is nurse is assessing meningitis and finds all except, हुन की नहीं है meningitis दा केड़ा साइन नहीं है? Yes, it is trismus. Trismus is not a sign of meningitis. Trismus is a sign of tetanus. Trismus दा होर की ना है, कौन दसेगा? लिखो कमेंट च कि ट्रिसमस नूं असी होर की कहने आ। What do we call Christmas या Christmas दा दूजा नाम की है? जिन्होंने पता है राइट इन द कमेंट सेक्शन, Christmas दा दूजा नाम की है? And yes, Christmas दा दूजा नाम है लॉक जॉ, ठीक है। जिहड़ा जॉ है खुले दा खुला ही रह जाता है या लॉकिंग पोजीशन च, मतलब हिलदा नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब है लॉक जॉ कि मसल स्टिफ हो जाते हैं, जिहड़ी भी पोजीशन च जॉ हुंदा है वो उसे ते जबाड़ा जिहड़ा हुंदा है वो उसे पोजीशन ते रहिंदा है। की निमोनिक तुसी याद कर सकते हो इहदे लई? ट्रैप। ट्रैप इज कि जॉ जिहड़ा है ट्रैप्ड हो जाता है, टाइट। jaw is trapped in tetanus, ठीक है। सो जॉ जिहड़ा है टेटनस च ट्रैप हो जाता है। ट्रैप मीनस कि बिल्कुल खुलदा नहीं है, ठीक है। कई जो टेटनस मतलब मसल स्पैजम है तो मसल स्पैजम च मुंह खुलिया रहिंदा है, बट जिहड़ा टेटनस है ओदा मेन है लॉक जॉ, ठीक है, लॉक जॉ। सो जॉ जिहड़ा ट्रैप हो जाता है इन टेटनस, इवें तुसी याद कर सकते हो, ओके। ते इहदे नाल एक होर क्वेश्चन साडा कवर हो जाता है, ट्रायड ऑफ मेनिनजाइटिस। सो मेनिनजाइटिस दा की ट्रायड है? नक्कल रिजिडिटी, नक्कल रिजिडिटी, कर्निग साइन, नक्कल रिजिडिटी, कर्निग साइंस ते ब्रुडजिंस्कीस साइन, ठीक है। सो आ ट्राइड भी दो क्वेश्चन तुहाडे इसे क्वेश्चन चो कवर हो जाएंगे, राइट। ओके, सो इसे दे नाल असी डिस्कशन कंप्लीट कर लिया इस सैशन का। मैनू तो बहुत मज़ा आया पढ़ाने च, तुहानू आया कि नहीं? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन so that I also get motivated to make such videos. So thank you so much. Keep learning, stay focused, stay consistent. थोड़े दिन रह गए ने बट कोई गल नहीं, we have to give our best. जिन्नी मेहनत करोगे, जिन्नी ज़्यादा तुसी इनपुट दोगे, उन्ना ही तुहाडा सक्सैस दा जिहड़ा कद है कद वो उच्चा होएगा, ठीक है। So thank you everyone for listening so patiently and being with me.